Students, welcome to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is friction. Friction basically क्या है students? We have studied in our very first chapter, physical world and measurements में हमने पढ़ा था 4 fundamental forces of nature. And amongst those forces, if you remember, there is a gravitational force, there is your electrostatic force, weak nuclear force and strong nuclear force. Friction is basically under the category of your electrostatic link. एक तरह का ये electrostatic link है. Reason being, see, I am writing on a board and I have written this word friction over here. It is not falling down. It means there is some other force which is holding it. And that force is electrostatic link. We'll talk about it. Basically, friction generate कैसे होता है? Friction is the type of force. अब force जब भी nature में आई, जब भी force nature में आई, it never occurs single. Single force is not there. Force हमेशा dual है. अब ये force कहाँ से produce हुई? See students, if this is the body 1, it's the body 2. I have kept it here. Like that. Now if I start moving this body, see, I am applying force, it is not moving. I have applied more force, it start moving. When I am applying force on it, it means I am doing action on this body. And in turn, there is certain force which is applied by body 2 on this body 1. That is a type of reaction force. And how it comes? When I start moving this body, when there is a relative motion between these two bodies, then this force comes into being, and this force is a reaction force. अब ये force जब मैं इसे यहाँ move कर रहा हूँ, again it is acting. When I am moving it like that, again it is acting. That shows that this force comes into being when two bodies are in contact. When I lift this body, there is no force. अब मैं इसे ऐसे उठा लिया. Now there is no such force on it. Now there is a different force acting on it. So it means ये force कब आ रही है? When the surfaces are in contact. Means ये कैसे act कर रही है? It is acting as a tangential to the surface. It is acting in tangential to the surface. किसके against? Against the force of action. So let's see how it works. So स्टूडेंट, फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? अभी हमने बात की थी, अभी दो बॉडीज इस तरह हैं एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट. तो फर्स्ट बात तो पहले पता चले हमें, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. जो आपने ग्रेविटेशन के बारे में जाना था, ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में आपने पहले पढ़ा है इन योर प्रीवियस क्लासेस. दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन इज अ नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स. सेकेंड, हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल पाए हैं? इट इज अ रिएक्शन फोर्स. ये एक रिएक्शन फोर्स विच कम्स इनटू एक्शन व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन. अब फॉर एग्जांपल, अब हम बात कर ही लेते हैं कि अगर मैंने इस पे एक फोर्स लगाई इन सच दैट इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी लाइक दैट, इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगा रहा हूं. नाउ दिस फोर्स इज गोइंग लाइक दैट. फोर्स के तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं. एक्शन लग रहा है इस साइड को, फोर्स के देयर मेनी कंपोनेंट्स. तो फ्रिक्शन किसी ना किसी कंपोनेंट के अगेंस्ट लग रहा है. तो बेसिकली फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट लगता है? इट इज ऑलवेज फ्रिक्शन इज देयर अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ मोशन. क्योंकि अगर फोर्स किसी पे किसी एंगल के थ्रू लग रही है, ऑब्वियसली there are many other variants of force. फोर्स के बहुत सारे, हमने वेक्टर में पढ़ा कि there are many components of force. So, किसी एक कंपोनेंट को फ्रिक्शन बैलेंस करेगा. पूरी फोर्स को हम बैलेंस करना नहीं बोलेंगे. तो बेसिकली कर क्या रहा है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज देयर अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ मोशन. और इंटेंशन ऑफ मोशन इस साइड है तो फ्रिक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इफ इट इंटेंशन ऑफ मोशन इज लाइक दैट, फ्रिक्शन विल बी इन दिस साइड. सो फ्रिक्शन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो है फ्रिक्शन वेरी कर रहा है. थर्ड थिंग,
ये फोर्स बेसिकली कैसे एक्ट करती होगी, व्हाट इज बेसिकली रीजन बिहाइंड इट. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड इज द रिएक्शन फोर्स विच इज अगेंस्ट द एक्शन. एक तो फ्रिक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा. दूसरा, दे आर टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन वन बॉडी विद एन इंटेंशन टू मूव इट. तो जब वो इंटेंशन टू मूव इट से उस पर फोर्स लगेगी. इंटेंशन टू मूव, फोर्स क्या करती है, हमने पढ़ा है फोर्स ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग द मोशन इन अ बॉडी. तो क्या यहाँ पे मोशन लगेगा, तो हमने यही पढ़ा है फोर्स की डेफिनेशन कि फोर्स ब्रिंग्स मोशन. तो यहाँ इंटेंशन ऑफ मोशन के अगेंस्ट उसी वक्त एक फोर्स लगेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दैट इज योर फ्रिक्शन, ऑपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन. It dwells where there is a two bodies are in a contact. This is basically a contact force, and the direction is always tangential to the surface. तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन बहुत इजीली हम बना सकते हैं. What will, अब इतना सब पढ़ के we can easily make the definition of friction. फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स है, पर कैसी, it is an opposing force. कैसे पता चलता है, आप रेगुलर लाइफ में भी देखिए, अगर ये बॉक्स है या कोई बक्सा है, इफ यू अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड, आपने फोर्स लगाई यहाँ पे 10 न्यूटन, ये फोर्स मूव नहीं, ये बक्सा मूव नहीं किया, दिस बॉक्स इज नॉट मूविंग. तो इसका मतलब इस पे रिएक्शन कितना लग रहा होगा, व्हाट इज रिएक्शन फोर्स ऑन दिस, दैट इज अगेन अ 10 न्यूटन. ये बहुत इजी आंसर करना. इफ इट इज 15 न्यूटन फिर भी ये मूव नहीं किया, इट मीन इस पे रिएक्शन फोर्स भी कितनी है, 15 न्यूटन. इससे मूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओवरकम द रिएक्शन फोर्स विच इज अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ मोशन, विच इज ऑपोजिट टू, ऐसे लिख सकते हैं, ऑपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन. तो हमें इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये बॉक्स मूव करेगा. सो दैट क्लियरली शोज कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आप लगाते हैं और कोई चीज मूव नहीं कर रही है, तो उसके इक्वल ही फोर्स वहां पे पैदा हो जाती है, एंड दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या बनी, द अपोजिंग फोर्स which comes into play whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between two bodies in contact, motion between two bodies in contact. एंड एक्ट कैसे करती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इट एक्ट्स टेंजेंशियली, ये हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करती है, इट एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, and tangent is that line which just touches the surface. So students, this is the definition of force of friction. Of cause of friction क्या हो सकता है, let us study that. What is basic cause of friction? Friction का cause क्या हो सकता है? There are many views regarding that. Cause of friction. हमने शुरू में बात की थी वीडियो के कि एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंग है. So ऐसा माना जाता है कि जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, नॉर्मली वी कैन नॉट सी इट, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप, हम देखते हैं देयर इरेगुलरिटीज इन द बॉडीज, एंड दो इरेगुलरिटीज आपस में ऐसे क्लिंग हो जाती हैं, दे जस्ट क्लिंग टुगेदर, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें इरेगुलरिटीज क्लिंग हो जाती है, लाइक दैट. देयर इज बेसिकली इरेगुलरिटीज, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं बॉडीज में, देयर आर मेनी इरेगुलरिटीज इन द बॉडीज, एंड दीज इरेगुलरिटीज गेट क्लिंग, ये बॉडी बी, ये आपस में क्लिंग हो जाती हैं, एंड दिस क्लिंग इन डिप्रेशंस में ये देयर आर प्रोजेक्शंस, यहाँ पे प्रोजेक्शन है बॉडी की, एंड दे गेट क्लिंग टू इट. तो इस क्लिंग को तोड़ना है हमें, बेसिकली यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज आपस में जब अटैच हो जाती हैं, दिस इरेगुलरिटीज को हमें ब्रोक करना है, ठीक है. तो व्हेन दिस ब्रोकन प्लेस्ड इन द इरेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड, जब ये इंटरलॉक आपस में हो गया, नाउ दे आर इंटरलॉक्ड, irregularities get interlocked. तो इन दो सरफेस में इरेगुलरिटीज आप देख पा रहे हैं,
and they get interlocked. वो आपस में एक तरह से लॉक हो जाती हैं, like that they get interlocked. अब उन लॉक को तोड़ने के लिए बॉडी मूव करेगी, it has to break that lock and that require a force. And this is how we have to, this is basically old view. पर इससे ये पता चलता था कि ऐसा माना गया कि इसका मतलब इरेगुलरिटीज कम होंगी तो फ्रिक्शन भी कम होगा, लेकिन बाद में क्या पता चला कि अगर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो वो डिपेंड ही नहीं करती है. तो इट मीन्स ये क्या बात हुई कि अगर लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो ग्रेटर होनी चाहिए थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन बाद में पता चला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. सेकंड क्या बोला गया कि अगर सरफेस स्मूथ होगा, if surface is made smooth, if surface is smooth, अब सरफेस अगर स्मूथ होगा तो इरेगुलरिटीज और कम होंगी. बट क्या पाया गया, एक्स्ट्रा स्मूथ, वेरी स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन इंक्रीजेस. अब ये थ्योरी ठीक थी, एटॉमिक लेवल पे बिल्कुल सही था कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ऑब्वियसली जो वेल्ड्स बने उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्लिंग हो गए. अब जोर लगा, बॉडी बी विल ट्राई टू मूव द बॉडी ए, तो इट विल अप्लाई लिटिल फोर्स. जब वो फोर्स लगेगी तो वो आपस में उसको तोड़ लेंगे इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी और जहाँ पे जाएगा वहाँ नेगेटिव, एंड दे गेट अट्रैक्टेड. तो उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बन गया ये. लेकिन ओल्ड थ्योरी में बात तो ठीक थी कि इरेगुलरिटीज के कारण, इंटरलॉकिंग के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होती थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी. ये आंसर नहीं कर पाया दो चीजें. पहले तो कि कहते हैं कि लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए, पर बाद में पता चला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती. फिर सेकंड कहा गया कि अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है उसमें तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पाया गया कि उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है. So there is another theory which is known as modern theory of friction, which is now used. Modern theory क्या कहती है फ्रिक्शन की? तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, that is basically when they are in contact, तो apparent contact जो ज्यादा लग रहा है हमें, actual contact is different. Actual contact में pressure points are there, and these pressure points will generate pressure. Pressure is basically a type of force only, that is force per unit area. ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेशर जनरेट होता है, और इसके जनरेट होने से क्या होता है, लार्जर प्रेशर इज एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ contact. This adhesive pressure, that is force upon area, makes surface to be welded, and these welds are known as cold weld. And force of friction basically cold weld पे ही लग रही है. These weld has to be removed. These welds has to be removed. अब हमने बात क्या की थी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन. ओल्ड थ्योरी ने कहा था फ्रिक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. ये प्रेशर जो लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे लग रहा है, विच इज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब इस मीन्स कि एडहेसिव प्रेशर इज क्रिएटिंग अ, प्रेशर के कारण फोर्स जनरेट हो रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, एंड दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, एडहेसिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन, and that friction is same in all the cases. अब फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दिस एडहेसिव फोर्स, दैट इज योर प्रेशर. बेसिकली दिस एडहेसिव प्रेशर कह लीजिए, ये प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फोर्स? रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यानी बेसिकली फ्रिक्शन की फोर्स सेम रहेगी क्योंकि एडहेसिव रिस्पॉन्सिव, एंड इट विल रिमेन सेम. ये हर पॉइंट पे यहाँ पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी सेम एट ईच पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट. तो इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, क्योंकि फ्रिक्शन वाली ही फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडहेसिव प्रेशर. So that's why it is not any influence over the area. ठीक है, तो एरिया के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ एडहेशन ही बढ़ेगा. फोर्स ऑफ एडहेशन विल इंक्रीज, यानी प्रेशर पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा. और ये प्रेशर in turn is responsible for friction, and this force will be same for all the points. So that's why. Second हमने कहा था कि अगर
सरफेस को स्मूथ बना दिया जाता है, एक्स्ट्रा स्मूथ। तो एक्स्ट्रा स्मूथ होने का मतलब क्या है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा स्मूथ होने से कोल्ड वेल्ड्स जिनकी फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू दिस एक्चुअल कॉन्टैक्ट के कारण यहाँ पे कोल्ड वेल्ड्स की फॉर्मेशन हुई, दे सीम्स टू बी वेल्डेड, ये नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स विल इंक्रीज, एंड मोर द नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स विल इंक्रीज, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट इज मोर फ्रिक्शन विल बी देयर। तो उसको हटाने के लिए नंबर ऑफ कोल्ड वेल्स बढ़ जाएंगे, उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, एक अपोजिंग फोर्स है जो रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज के कारण पैदा होती है, दैट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड इसका सारा का सारा रिलेशन रिलेटिव मोशन से है। सेकेंड थिंग, देयर आर टू टाइप्स, मेन कैटेगरीज, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग एक्सेट्रा, एंड इंटरनल फ्रिक्शन इज बेसिकली which you study in other chapters, in coming chapters, that is your friction due to motion of liquids, fluids में gases और liquids की अगर हम बात करें उसे कहते हैं viscosity, that will come in your different chapters. So basically यहाँ हमें डील करना है अब static, kinetic and rolling friction से, static, limiting and rolling friction in the way. So students, till then stay tuned and study the content thoroughly.